The second type is permanent tissue. Now, after complete growth, the cells lose their ability to divide and they are starting to perform a specific function at specific place, and this is due to the process of differentiation. पहले जो है, पहले तो प्लांट जो है वो टोटीपोटेंट रहती है, कुछ भी काम उसको बोलेंगे वो वही काम करेंगे, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? टोटीपोटेंट, हम देखेंगे उसके बाद। टोटीपोटेंट। हाँ, टोटीपोटेंट प्लांट जो है वो कौन सा भी काम करेंगे। हमारे बॉडी में टोटीपोटेंट सेल्स बहुत कम जगह पे है, तो वो कौन सा भी सेल तैयार करने में लगे रहते हैं। दूसरा है प्लूरीपोटेंट, ठीक है, प्लूरीपोटेंट। अभी ये कुछ कुछ ऐसे सेल्स तैयार कर सकते हैं, वो सेल्स कुछ अलग टाइप में कन्वर्ट हो सकते हैं, डिवाइडिंग सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। और तीसरा है यूनिपोटेंट, मतलब यूनिपोटेंट मतलब वन, जिन जो काम उनको बोला है वही काम वो पूरी उस बॉडी, जब तक वो बॉडी है तब तक वो वही काम करेंगे, दूसरा काम उनको बोल दिया जाएगा तो नहीं करेंगे वो, तो उनको बोलते हैं यूनिपोटेंट। तो इस तरह से उनका डिफ्रेंसिएशन होता है। लेकिन जो पहला वाला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन जगह पे अलग अलग करके डिवाइड हो गया है, तो दैट इज़ डिवाइडिंग सेल्स। अभी ये परमानेंट सेल है, एक बार उनको परमानेंट किया, काम पे लगाया, तो वो दूसरा काम नहीं करेंगे। नाउ द परमानेंट, दे आर एक्वायरिंग परमानेंटली a specific structure, specific shape, specific location, and they are performing a specific function also. Now, these permanent tissues are formed from these differentiated cells, and there are two types of permanent tissues as we have seen in chart. First is a simple permanent tissue and second one is complex permanent tissue. Now we are moving to the next. Before that we will see the epidermis. Now the epidermis is a outer surface of plant and it is made up of only one layer of cell, and this is called as a epidermis. Cells of epidermis are of flat, as there is no intracellular space between them and a single continuous layer is formed. Now the epidermis of the stem and the leaf is covered by waxy layer, that is cuticle, due to which water in the underlying part is retained. नाउ ये क्यूटिकल क्यों है वो बताता हूँ। ये जो क्यूटिकल है वो पानी का इवेपरेशन करना कम करता है। अगर हमारे प्लांट के बॉडी में से पानी का कंटेंट अगर इवेपरेशन, सनलाइट की हीट की वजह से इवेपरेशन होता है और इवेपरेशन की वजह से प्लांट के बॉडी में से पानी कम होता जाता है। अगर ये पानी कम हो गया तो प्लांट को पानी ज़्यादा लगेगा, और जितना ये क्यूटिकल का लेयर अच्छा रहेगा, ज़्यादा रहेगा, पानी का इवेपरेशन कम होगा। तो ये प्रोटेक्टिव लेयर है जो एपिडर्मिस के ऊपर रहता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू, these are made up of only one type of cell and according to their function they are again classified into parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Now we will see in detail the types of simple permanent tissue, that is the figure of parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. There are intracellular spaces, vacuoles are there, chloroplast is there in parenchyma. Collenchyma, vacuoles are there, cell wall is there. Sclerenchyma, simple pit, lumen is there, cavity रहती है, और lignified thick wall, cell wall रहती है. Now उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन देखेंगे। पहला तो स्ट्रक्चर ऑफ पेरेनकाइमा, दीज आर लिविंग सेल्स। पेरेनकाइमा, these are the living cells with thin cell wall and
intracellular spaces. They have intracellular spaces. In collenchyma, the collenchyma cells, these are also elongated living cells with thick cell wall. यहाँ पे पेरेन्काइमा में thin cell wall है, यहाँ पे thick cell wall at the corners due to cellulose and pectin. ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, ये उनके अंदर कोलेनकाइमा के अंदर रहेंगे. नाउ स्क्लेरेनकाइमा, दीज आर द डेड एंड फाइबरस सेल्स with tapering ends and the cell wall contain lignin. यहाँ पे lignin रहेगा. लोकेशन पेरेन्काइमा कहाँ कहाँ पे है? ऑल पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड सीड. पेरेन्काइमा हर जगह पे रहेंगे क्योंकि ये लिविंग सेल्स है. कोलेनकाइमा, these are present at the base of the leaf, petiole, branches and stem. Sclerenchyma, these are present on the stem, veins of leaf, hard coats of seed and outer covering of the coconut. कोकोनट को जो बाहर का कोटिंग है वो स्क्लेरेनकाइमा का रहता है. नाउ फंक्शन, पेरेन्काइमा का फंक्शन क्या रहेगा? पहला, सपोर्ट स्टोरेज ऑफ फूड एंड फिलिंग अ वैकेंट स्पेस. कोलेनकाइमा का फंक्शन है सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू वेरियस पार्ट्स. स्क्लेरेनकाइमा गिव स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. Now parenchyma is again divided into two, that is chlorenchyma. That chlorenchyma and colenchyma दोनों अलग अलग है. यहाँ पे colenchyma है और यहाँ पे chlorenchyma है. So मैं डिफरेंस बताता हूँ. chlorenchyma, यहाँ पे R जो है chlorenchyma, chlorenchyma is कलर. अभी यहाँ पे क्लोरेनकाइमा क्लोरोफिल की वजह से जो लीफ में ग्रीन कलर आता है, दैट इज़ ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट. अभी यहाँ पे क्लोरोफिल की वजह से ये क्लोरेनकाइमा जो टिश्यू है, इनसे वो अलग अलग ऑर्गन तैयार होते हैं और ये ऑर्गन ये कलर तैयार करने का काम करते हैं. तो प्लांट में जो ग्रीन कलर है वो क्लोरोफिल की वजह से है और ये क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होता है. तो क्लोरेनकाइमा का बेसिक फंक्शन हो गया फोटोसिंथेसिस. लीफ में होता है वो फंक्शन, स्टेम में भी होगा. एरेनकाइमा, एयर इटसेल्फ इज सेइंग, द जो एयर स्पेसेस है वो इस टिश्यू की वजह से होते हैं, एरेनकाइमा की वजह से. और ये एक्वेटिक प्लांट में बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं. एक्वेटिक प्लांट में जो उनको एयर की वजह से, एरेनकाइमा टिश्यू की वजह से अंदर स्पेस तैयार होता है और ये फ्लोटिंग में इस्तेमाल होते हैं. तो जो टिश्यूज जो प्लांट है, जो एक्वेटिक प्लांट है, इनमें एरेनकाइमा ज़्यादा रहेंगे तो वो प्लांट फ्लोटिंग हो जाएंगे. The next topic is types of complex permanent tissue. There are two types of permanent tissue, complex permanent tissue. First is a xylem and second one is a phloem. Now the figure is given in front of you. The xylem is inner part and the phloem is surrounding part of that plant tissue. Characteristic, these are consist of thick walled dead cells. जाइलेम जो है वो डेड सेल्स रहेंगे और फ्लोएम जो है दिस कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म कंटेनिंग लिविंग सेल. अभी फ्लोएम में लिविंग सेल रहेंगे. टाइप्स ऑफ सेल्स, जाइलेम के अंदर ट्रकिड्स रहेंगे, वेसल्स रहेंगे, एंड जाइलेम फाइबर्स, दीज आर द डेड सेल्स. एंड जाइलम पेरेन्काइमा, दीज आर ऑल्सो लिविंग सेल्स. पेरेन्काइमा जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज में है वो अलग है और जाइलेम पेरेन्काइमा, दीज आर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये अलग है. फ्लोएम में, नाउ इन फ्लोएम द टाइप्स ऑफ सेल्स, देर आर सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा, these are also living cells, and phloem fibers. जहाँ पे जाइलेम फाइबर जाइलेम में है वो भी डेड सेल है, फ्लोएम फाइबर ये भी डेड सेल है. ध्यान में रखो, ये डिफ्रेंसिएशन के टाइम पे बहुत काम पे आता है. द फंक्शन, जाइलेम का फंक्शन है द स्ट्रक्चर्स लाइक इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स. ये इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स, दीज आर यूजफुल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर्स, मिनरल
ओनली इन अपवर्ड डायरेक्शन, ओनली इन अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये काम नहीं करेंगे क्योंकि ये खुली जगह रहती है। नेक्स्ट फ्लोएम, फ्लोएम में क्या होता है, दीज आर द ट्यूब्स विच आर ज्वाइनिंग टू ईच अदर, दे आर कंडक्टिंग शुगर अमाइनो एसिड फ्रॉम लीव्स टू वेरियस पार्ट्स। अब ये कौन से भी डायरेक्शन में काम करेंगे, और जो फ्लोएम है वो इसके ऊपर काम करते हैं, हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर काम करती है, और जाइलम जो है वो एसेंट ऑफ सैप, एक हम देखने वाले वो बाद में। हमने लेसन नंबर 15 में वो देखा था कि पानी कैसे ऊपर चढ़ता है, मिनरल्स रूट से ऊपर वाले लीफ को पानी कैसे पहुंचता है, ये हमने 15th लेसन में देखा था। किसी को याद है? प्लांट में जमीन के अंदर रूट्स रहेंगे। अभी जो ज़मीन है वो ज़मीन के अंदर पानी रहेगा, पानी यहाँ पे ज़्यादा है और रूट्स में पानी कम है, तो यहाँ पे रूट प्रेशर तैयार होगा और रूट के सेल जो है ये पानी एब्सॉर्ब करेंगे और ये पानी जो है वो अंदर जाएगा। अकॉर्डिंग टू रूट प्रेशर, अंदर पानी का प्रेशर कम है, पानी का कॉन्सेंट्रेशन लो है और बाहर पानी का प्रेशर ज़्यादा है, तो पानी बाहर से अंदर जाएगा, तो ये रूट प्रेशर की वजह से। तो यहाँ पे पानी भर गया। ओके, नाउ अभी ये पानी भरने के बाद ये पानी धीरे 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 ऐसे बढ़ता जाएगा, जितना यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल होते होते यहाँ पे पानी बढ़ता हुआ जाएगा। पानी यहाँ पे कम हो गया, इधर से पानी जाए इधर आएगा, रूट आगे जाएगा क्योंकि रूट के अपाइकल मेरिस्टेम आगे जाएंगे, उनका लेंथ बढ़ेंगे, वो पानी खींचना चालू करेंगे, तो पानी जैसे ही वो अंदर आता रहेगा, ये इस तरह से पानी ऊपर की तरफ जाएगा और प्लांट के हर एक पार्ट को पानी मिलेगा। प्लांट क्या एक दिन में बड़ा नहीं हुआ है कि उसको अभी तक पानी नहीं दिया। तो प्लांट ज़मीन के अंदर होता है, पहले तो सीड होती है, वो सीड से वो पूरा प्लांट बनता है। तो जैसे ही वो सीड यहाँ पे है तो पहले से ही वो पानी पूरा के पूरा ये रूट प्रेशर जो बोल रहे हैं ना, वो प्रेशर की वजह से पानी पूरा भर जाता है। अभी तो ऑलरेडी पानी यहाँ पे पहुँचा है, ऑलरेडी पानी जो है वो लीफ के ये प्लांट के ऊपर वाले हिस्से में पानी पहुँचा है। जैसे ये प्लांट बड़ा होता जाएगा, अभी यहाँ से ये प्लांट इतना बड़ा हो गया, अभी ये प्लांट में इधर पानी है, पानी भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो लीफ है वो लीफ से पानी इवेपोरेट हो जाएगा। तो उस टाइम पे यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा, पानी यहाँ से चला गया, यहाँ से पानी चला गया, ये इधर का पानी आगे जाएगा, इधर की जगह फिल करने के लिए नीचे से उस पानी को कंप्लीट किया जाएगा। यहाँ पे नीचे से होने के लिए यहाँ पे रूट से पानी ऊपर खींचा जाएगा और रूट से खींचने के लिए रूट के टिप में से पानी खींचा जाएगा। तो एक्चुअली ये ब्लैंक स्पेस नहीं रहती, ये जो ब्लैंक स्पेस है वो पहले से ही भरी हुई रहती है। यहाँ से पानी लीफ से इवेपरेट होगा और उसके बाद वो जो खाली जगह है वो फिल की जाएगी और वो प्रेशर यहाँ से आगे किया जाता है। ये क्लियर हो गया क्या? बायोटेक्नोलॉजी, there are some cells in the body, as we have said, that is these are the totipotent cells, जिनके अंदर पूरा पोटेंशियल रहता है, टोटल पोटेंशियल रहता है कि वो कौन से भी सेल में, कौन से भी ऑर्गन में, कौन से भी टिश्यू में, कौन सा भी सिस्टम तैयार करने की कैपेसिटी रखते हैं।
तो ऐसे हमारे बीच में भी बहुत सारे लोग रहते हैं ना, उनको कोई भी काम बोल दो यार, इसको ये प्लम्बिंग का काम बोलो, फिटिंग का काम बोलो, इलेक्ट्रिसिटी का काम बोलो, सब काम करेगा। इज लाइक अ टोटीपोटेंट सेल्स। तो ये टोटीपोटेंट सेल है क्या? इफ सेल इज प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर एनवायरमेंट, अ न्यू ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो फ्रॉम दिस सेल। एक नया ऑर्गेनिज्म, ये पूरा इंसान या पूरा एनिमल, पूरा प्लांट तैयार करने की कैपेसिटी वो एक सेल रखता है, और ऐसे सेल को बोलते हैं टोटीपोटेंट सेल। नाउ देर आर वेरियस varieties of high yielding crops, new species of animals, various vaccines, and these can be produced with the help of property of totipotency of that cell and their genetically controlled biochemical process। हम हाई यील्डिंग क्रॉप्स तैयार कर सकते हैं। अभी आप देखोगे तो बाज़ार में जाते हो तो गेहूं के हज़ारों टाइप्स आपको मिलेंगे, चावल के हज़ारों टाइप्स मिलेंगे आपको, हर चीज़ के बहुत सारे टाइप्स मिलेंगे। ये सब जो है वैक्सीन भी हम बहुत सारे मिलते हैं। तो ये सब कुछ हमें बायोटेक्नोलॉजी की देन है। एंड दिस लीड टू द राइज ऑफ न्यू ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके टेक्नोलॉजी में हम ये बायोटेक्नोलॉजी एक नया ब्रांच इस्तेमाल करते हैं अभी। विद द हेल्प ऑफ दिस बायोटेक्नोलॉजी वी कैन प्रोड्यूस प्लांट्स, we can produce animals with having new additional characteristic which are not in natural characteristic। जो नेचुरली हमें मिल रहा है उससे भी ज़्यादा, अगर नेचुरली हमें जो मिला है उसमें अगर प्रॉब्लम होगा तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व करने की कैपेसिटी ये बायोटेक्नोलॉजी का ब्रांच लेता है। नाउ what do you mean by biotechnology? The technique of bringing about improvement in living organism by artificial genetic changes and hybridization for the welfare of human being are together called as a biotechnology। Now this biotechnology is including the technique of genetic engineering and the tissue culture, and in this topic, in this ninth standard, you will see what do you mean by tissue culture and how it is working। So we will see the uses of biotechnology। first, to produce cash crops, जिससे हमें जो कैश क्रॉप्स है वो ले सकते हैं। improvement in variety of cash crops, increase in ability of plants to withstand environmental stress। एनवायरमेंटल स्ट्रेस कम करने के लिए, जहाँ पे पानी नहीं है, अभी मान लो मुझे राजस्थान में आम का ये बगीचा तैयार करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आम को या शुगर केन को पहले से ही पानी ज़्यादा लगता है। तो वो राजस्थान की मिट्टी में, राजस्थान की मिट्टी अलग है, तो वहाँ पे मैं वो शुगर केन या आम का जो बगीचा है वो तैयार नहीं कर पाऊँगा। लेकिन अगर मैं उस प्लांट के अंदर जीन्स को चेंज करता हूँ कि जो पानी वाला ट्रिगर होने वाला, पानी जिसको लगता है, जिस जीन पानी डिटेक्ट करता है, अगर मैं रिप्लेस करके कैक्टस वाला, कैक्टस राजस्थान में आ सकता है क्योंकि उसको पानी की जितनी ज़रूरत नहीं, जो कैक्टस वाला जो जीन है अगर मैं उठाकर उस प्लांट में डालता हूँ तो मैं एक कैपेसिटी रखता हूँ कि वो जो प्लांट है मैं राजस्थान में भी ग्रो करके दिखा सकता हूँ। नेक्स्ट इज़ वैक्सीन प्रोडक्शन। वैक्सीन है, बहुत सारे वैक्सीन आपको पता है, तो ये वैक्सीन प्रोडक्शन भी बायोटेक्नोलॉजी की देन है। नेक्स्ट, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ कंजेनाइटल डिसीजेस। देर आर सो मेनी डिसीजेस विच आर ऑकरिंग बाय बर्थ। बाय बर्थ जो डिसीजेस आते हैं उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो डिसीज़ आया है वो जीन्स की वजह से डेवलप हुआ है या तो फिर एनवायरनमेंट की वजह से डेवलप हुआ है, तो वो हम चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अगर जीन की वजह से आया तो जीन रिप्लेस कर सकते हैं, जीन ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जीन म्यूटेट कर सकते हैं। अगर एनवायरनमेंट की वजह से आया है तो वो हम ऑर्गन टिश्यू रिप्लेस करके, टिश्यू कल्चर से वो रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ये तो आपको पता है।
किडनी ट्रांसप्लांट होती है, हार्ट ट्रांसप्लांट होते हैं, दीज आर द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। कैंसर रिसर्च, ये बहुत बड़ा एरिया है। मुंबई के रहने वाले हो तो आपको ये कैंसर रिसर्च पूरी तरह से पता है। हमारे यहाँ पे कैंसर का पूरा एक हॉस्पिटल है। तो कैंसर रिसर्च इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी बहुत सारे टेक्निक्स है। तो नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल स्किन कार्टिलेज, ये सब प्रोडक्शन लेबोरेटरी में तैयार होता है ऑन द ये भी सब बायोटेक्नोलॉजी की देन है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज, इफ यू वांट टू ग्रो अ गार्डन लाइक दिस वन, अगर आप ऐसा गार्डन एक तैयार करना चाहते हो आपके सराउंडिंग में, आपके घर के बाजू में या स्कूल में, तो व्हाट विल यू डू टू अचीव दैट, क्या करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, बाय विच मेथड विल यू कल्टिवेट दोज सीडलिंग्स। तो ये क्वेश्चन लेके हम नेक्स्ट टॉपिक चालू करने वाले हैं। जो केले का जो एक प्लांट आता है ना, वो प्लांट साल भर में आपको एक ही बार देगा और उसके बाद वो केले का कुछ भी यूज़ नहीं होगा। तो जो बनाना का एक बार आपको प्लांट मिलेगा, उसके बाद वो बनाना निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं वो जीन उसका रिप्लेस करता हूँ और वो 1 साल का जो जीन है उसको करके मैं 6 महीने का करता हूँ, तो मुझे 1 साल में 2 बार बनाना का पूरा गढ़ मिलेगा। ठीक है, अभी 2 बार मिला है, मान लो मैं 2 बार के बाद जगह 4 बार करता हूँ, तो मुझे 3 महीने भी मिलेगा। 3 6 6 6 12, मतलब 4 बार मुझे मिल जाएगा। तो मैं जीन को किस तरह से डेवलप करूँगा, उस तरह से मैं वो प्लांट में नया वाला इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। अभी जो नेचुरली मिलने वाली जो केली है वो छोटी रहती है, और अभी हाइब्रिडाइजेशन से जो केले आते हैं बाज़ार में, जो बड़े बड़े रहते हैं, वो येलो कलर के रहते हैं, जल्दी पकते नहीं हैं। तो ये सब जो है वो वैरायटी तैयार किए हैं, खाने में भी टेस्टी रहेंगे, प्रोटीन कंटेंट भी ज़्यादा रहेगा, न्यूट्रिएंट कंटेंट भी उसका ज़्यादा रहेगा। सिर्फ मैं केले की बात कर रहा हूँ, बनाना की बात कर रहा हूँ, बाकी सब इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है। आप भी कर सकते हो, ये बहुत बड़ा ब्रांच है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, और इसमें आप लाखों करोड़ों कमा सकते हो। Now and the topic is, that is, okay, the question again, दूसरा क्वेश्चन, you must have seen the flowers of same variety। अभी ये बनाना की क्या बात कर रहे हो, बहुत सारे फ्लावर्स भी आपको दिखाई देंगे। रोज का तो पहले रेड ही कलर था, अभी ब्लैक कलर में भी ब्लैक कलर में भी आपको रोज मिलता है, वाइट कलर में भी मिलता है, येलो भी मिलता है, सब कलर में आपको ये रोज मिलता है। और रोज नहीं, सब प्लांट, आई थिंक सब फ्लावर्स मिलते हैं अभी। आप अगर वो कैप्सिकम जो है वो येलो कलर में मिलता है, रेड कलर में मिलता है, और भी सैफरन कलर में भी मिलता है, बहुत सारे ऐसे कलर में मिलता है वो कैप्सिकम, क्योंकि उसमें हाइब्रिडाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ है। और अभी वो जो टॉपिक है वो है टिश्यू कल्चर। ये सब होता है एक टिश्यू की वजह से, मुझे पूरे प्लांट की ज़रूरत नहीं है। मैंने पिछली बार अभी 5 मिनट पहले शुगर केन की बात की थी ना, तो शुगर केन का जो आँख है, मैंने शुगर केन की बात की थी, तो शुगर केन जो है, शुगर केन के ऊपर एक आँख रहती है। अभी ये जो शुगर केन है, ये शुगर केन के इंटर कैलरी मेरिस्टेम पे एक आँख रहती है, ये एक टिश्यू रहता है। इस टिश्यू को क्या करते हैं, वो यहाँ से निकालते हैं और ये टिश्यू को कल्चर किया जाता है लैब में। क्या किया जाता है, कल्चर किया जाता है लैब में। सिर्फ कि पूरा के पूरा प्लांट इस्तेमाल ही नहीं करते, सिर्फ उसके ऊपर जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम है, या तो फिर हम उसको आँख बोलते हैं, वो आँख को उठाकर यहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है, और उसको ही हम टिश्यू कल्चर बोलते हैं। फर्स्ट वी विल सी द डेफिनेशन, द एक्स विवो ग्रोथ ऑफ द सेल
एक्स विवो मतलब, नीचे मैंने डेफिनेशन ये एक्स विवो का मतलब भी आपको लिख के दिया है। तो एक्स विवो इज द कंडीशन, it refers to the experiment or the measurement done in or on the tissue from an organism in an external environment with the help with minimal alteration and natural condition। नेचुरल कंडीशन और मिनिमम अल्ट्रेशन किया जाता है, उसको बोलते हैं एक्स विवो ग्रोथ ऑफ द सेल और द टिश्यू। अगर सेल कर रहे हैं तो सेल कल्चर हो जाएगा एक्स विवो सेल कल्चर, अगर मैं टिश्यू कर रहा हूँ तो एक्स विवो टिश्यू कल्चर इन एन असेप्टिक एंड न्यूट्रिएंट रिच। असेप्टिक जहाँ पे सेप्टिक कंडीशन कुछ भी नहीं रहेगी, कंटेमिनेशन नहीं रहेगा। और दूसरा न्यूट्रिएंट रिच, न्यूट्रिएंट उसको चाहिए, एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मीडियम रहता है उसका, और ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं टिश्यू कल्चर। नाउ द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म कैन बी डेवलप फ्रॉम अ सिंगल सेल or from the tissue with the help of this tissue culture technique, and the nutrient rich material is a liquid, solid or the gel like medium which is prepared from agar. It is a special nutrient supplied for nutrition and energy which is necessary for tissue culture. Now the tissue culture is having डिफरेंट स्टेप्स। यहाँ पे बनाना एक सिंपल एग्जाम्पल लिया है। तो पहले बनाना का जो टिश्यू है, ये टिश्यू कलेक्ट किया जाता है, जो पेरेंट प्लांट है, जो हमने अभी शुगर केन देखा ना, वो शुगर केन से उसको कलेक्ट किया जाता है। इट इज़ अ इंटर कैलरी मेरिस्टेम, आँख बोलते हैं। तो वहाँ से उसको उठाया, उसको पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया। प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद उसको जो है रिप्रोडक्शन, उसका मल्टीप्लिकेशन किया, मल्टीप्लाई करने के बाद उसको स्टेम आएगा, रूट आएगा। स्टेम मतलब शूटिंग एंड रूट मतलब रूटिंग। अभी ये शूटिंग और रूटिंग होने के बाद उसको बाहर किया और उसको अलग अलग करके ऐसे हजारों ट्रे किए और उसको बोलते हैं प्राइमरी हार्डनिंग। छोटे छोटे प्लांटलेट्स में किया और प्राइमरी हार्डनिंग किया, और उसके बाद सेकेंडरी हार्डनिंग किया। सेकेंडरी हार्डनिंग में वो प्लांट उस लैब से बाहर आ जाएगा, और सेकेंडरी हार्डनिंग के बाद वो प्लांट जो प्लांट है वो क्या बोलते हैं उसको, खेत में लगा दिया जाएगा। तो दैट विल बी द एंड। और इस तरह से विदाउट एनी प्लांट, सिर्फ उसका जो स्टेम है, उसका जो टिश्यू है, वो एक टिश्यू से मैं ऐसे करोड़ों प्लांट्स तैयार कर सकता हूँ विद माय क्या बोलते हैं, माय प्रेफरेंसेस। मुझे क्या चाहिए, माय प्रायोरिटी, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए। मुझे बनाना का साइज़ बढ़ाना है, नंबर ऑफ बनाना बढ़ाना है, फिर मुझे वो जो एरिया उसका टाइम पीरियड है वो कम करना है। इस करके बहुत सारे क्राइटेरिया मैं अप्लाई कर सकता हूँ, और इस तरह से मैं टिश्यू कल्चर में मेरे हिसाब से वो जो प्लांट है वो तैयार कर सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन माय प्रायोरिटी। मुझे किस चीज़ में पैसा ज़्यादा मिलेगा, वो उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँगा। सो इस तरह से हमने एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू देखे। नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पे हमने बायोटेक्नोलॉजी भी देखी और टिश्यू कल्चर भी देखा। नेक्स्ट टाइम हम एग्रो टूरिज़्म और एग्री बिजनेस के बारे में देखेंगे। थैंक यू।